क्वेश्चन नंबर 56 में हमें प्रॉफिट दिया हुआ है, देन ये पर्टिकुलर्स दिए हुए हैं जो हम ऐड सब्ट्रैक्ट करेंगे, प्लस एडिशनल इन्फॉर्मेशन दी है, एंड उसके बाद हमें नीचे कुछ एडजस्टमेंट्स भी दिए हैं। पेटेंट्स परचेज हुए हैं फॉर 50,000 रुपीज़, प्रपोज डिविडेंड फॉर द ईयर 1,50,000 एंड 2,00,000 रुपीज़, इंटरिम डिविडेंड ड्यूरिंग द ईयर 50,000 एंड 1,20,000 रुपीज़। ओके, सो प्रपोज डिविडेंड ये वाला यूज करेंगे, इंटरिम डिविडेंड ये वाला यूज करेंगे। अब उसने बोला है ही हैज नॉट आस्क्ड अस टू कैलकुलेट द कंप्लीट, ही सेज डिटरमिन द नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम्स। ओके, सो ये पार्ट्स में करेंगे हम सब। प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेस, उसने कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग नहीं बोला हमें करने के लिए। देन इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज, फाइनेंसिंग एक्टिविटीज एंड कैश इक्विवेलेंट्स। सो लेट्स गेट टू द नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्राऑर्डिनरी। सो लेट्स स्टार्ट विद नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्रा आइटम। सबसे पहले 15 लाख का प्रॉफिट उसमें जाएगा। देन 15 लाख के प्रॉफिट के बाद लॉस ऑफ फर्नीचर ड्यू टू फायर जाएगा, टैक्स रिफंड सब्ट्रैक्ट हो जाएगा। टैक्स रिफंड इज 10,000, लॉस ऑफ फर्नीचर ड्यू टू फायर इज 10,000, ये सब सब्ट्रैक्ट हो जाएगा। देन वी रेड अबाउट द प्रपोज डिविडेंड एंड the proposed dividend and interim dividend. So let's make the net profit before tax and extraordinary items. So cash flow statement का first step ही होता है net profit before tax and extraordinary items. So we'll start with what? We'll start with net profit. As is mentioned in the question itself, it is worth 15 lakhs. Right? Net profit is 15 lakhs. Will add interim dividend, we will add the proposed dividend, and we'll add the loss of furniture due to fire. So let's calculate their values. The interim dividend is 1,20,000, proposed dividend is 1,50,000, and loss of furniture due to fire is 10,000. So सबसे पहले interim dividend 1,20,000, proposed dividend is 1,50,000. proposed dividend if you remember हम लोग last year का लेते हैं, last year का closing. Loss of furniture due to fire is 10,000. Then is there anything left out? Yes, provision for tax. Provision for tax, the amount for provision for tax is 1 lakh rupees. So provision for tax 1 lakh rupees. So this totals to, it is 18,80,000 less tax refund. Tax refund was 10,000. So net profit is 18,70,000. So हमारा first part was to calculate determining the net profit before tax and extraordinary items. So ये हमारा आ गया net profit before tax and extraordinary items. So इसमें ये extraordinary item हो गई ना, expense. This is extraordinary expense. Loss of furniture due to fire. Okay, so this becomes profit before tax and extraordinary items. We may write it items. Okay, इसके बाद आता है हमारा second question. Second question says determine the operating profit before working capital changes. So before working capital. So before working capital में हम इसी को continue करते हैं. Add non-cash and non-operating expenses. Non-cash, non-operating. So add cash and non-operating expenses. सबसे पहले हमारा नॉन कैश था डेप्रिसिएशन 1 लाख रुपया,
उसके बगैर और कौन सा है? ओके, वी हैड दी पेटेंट्स एज वेल, अमोर्टाइज हुए हैं, लेस हुए हैं पेटेंट्स, एंड देयर आर परचेज ऑफ पेटेंट्स आल्सो, तो पेटेंट्स अकाउंट बनेगा। सबसे पहले लेट अस राइट डाउन द डेप्रिसिएशन हियर, 1 lakh rupees. Let's make the patent account. यहां बनाते हैं पेटेंट अकाउंट। particulars amount, particulars amount, particulars amount, particulars amount, right? अब हमारे patents, opening patents, increase in patents is always debited and opening patents is also debited. So purchase हुई है patents की to bank account, sorry, I had to use the blue pen. So to bank account purchase, 50,000 के परचेज हुए हैं, to balance brought down by balance carried down, 50,000 and 80,000. So 50,000 was carried down, लास्ट ईयर का था, 80,000 लास्ट ईयर का था, 50,000 इस साल का क्लोजिंग। आई हैव जस्ट एक्सप्लेन्ड यू, डिक्रीज इन पेटेंट्स, इस केस में पेटेंट्स डिक्रीज हुए हैं, इट इज 1,30,000, दिस शुड ऑल्सो बी 1,30,000। हैड द क्रेडिट साइड बीइंग मोर तो परचेज होता, अब इस केस में बाय अमोर्टाइजेशन, अदरवाइज बाकी फिक्स्ड एसेट्स में हम डेप्रिसिएशन भरते हैं ना, इसमें अमोर्टाइजेशन होता है। सो दिस इज रिडक्शन इन एसेट इज कॉल्ड अमोर्टाइजेशन। सो 80,000 का इसमें अमोर्टाइजेशन है पेटेंट्स का। सो डेप्रिसिएशन के बाद हम लोग लिखेंगे amortization of patents, 80,000. So this becomes 1,80,000 in total. There was an income also, interest on investments, long term income थी, so उसको हम less करेंगे, interest on investments, 25,000 will be subtracted from here and the balance becomes, so this is 1,55,000, 1,55,000. Now this solves our second question, which was operating profit before working capital. Before working capital changes. So इसका टोटल आ गया, ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेस इज 20,25,000, right? So we have solved two questions. Let's understand the third question. The third question says कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। अब कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग करने के लिए हमें इन्वेस्टिंग की सारी ट्रांजैक्शंस देखनी पड़ेंगी। सबसे पहले इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट्स ऐड हो जाएगा, राइट? देन फर्नीचर का अकाउंट बनेगा बिकॉज देयर इज अ लॉस ऑल्सो, सो लेट अस मेक द फर्नीचर अकाउंट फर्स्ट। देन मशीनरी अकाउंट बनेगा, ओके, डेप्रिसिएशन है इसलिए, सो लेट अस मेक द फर्नीचर एंड मशीनरी अकाउंट्स, देन वी विल मूव फॉरवर्ड। सो particulars amount, particulars amount, particulars amount, particulars amount, that was for machinery. Next would be for furniture. Particulars amount,
particulars amount. प्लीज रिमेंबर, हम लोग एसेट्स अकाउंट बना रहे हैं. इंक्रीज इन एसेट इज डेबिटेड एंड सेकेंडली ओपनिंग ऑफ एसेट्स विल बी डेबिट. सो टू बैलेंस ब्रॉट डाउन by balance carried down. Similar would be for furniture. To balance brought down by balance carried down. Particulars amount, particulars amount. This is credit side, this is debit side. So let us understand how to make the machinery count first. तो बैलेंस ब्रॉट डाउन 3 लाख रुपीस, बैलेंस कैरी डाउन 5 लाख रुपीस मशीनरी का, राइट. डेप्रिसिएशन हमें 1 लाख रुपीस दिया हुआ है, सो बैलेंसिंग फिगर वुड बी परचेजेस 3 लाख रुपीस. ये इन्वेस्टिंग में आएगा 3 लाख. फर्नीचर बैलेंस ब्रॉट डाउन 1 लाख रुपीस, बैलेंस कैरी डाउन 80,000 रुपीस. अब डेबिट साइड ज्यादा है, क्रेडिट साइड से 10,000 का डिफरेंस है, सो दिस 10,000 वुड बी द सेल्स 10,000. फॉर्मूला वही चलेगा कि इंक्रीज इन एसेट इज डेबिटेड, डिक्रीज इन एसेट इज क्रेडिट. क्योंकि इसमें एसेट डिक्रीज साइड पे कम था इसलिए वो सेल है. अगर इंक्रीज होता तो वो परचेजेस होता है, एज इन केस ऑफ मशीनरी. सो कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज. थर्ड क्वेश्चन है हमारा, कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी. सो वी स्टार्ट विथ, सबसे पहले हमारे पास इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट्स है. We have mentioned it above as well. So interest on investments, ये हमारी इनकम है, प्लस में हुआ है 25,000, ये हमें रिसीव हुआ है पैसा, राइट. उसके बाद हमने फर्नीचर सेल किया है, उसका भी पैसा हमें रिसीव हुआ है. अभी हमने फर्नीचर का कैलकुलेट किया था, सो इट वाज 10,000 रुपीज. देन हमने मशीन परचेज की है, सो परचेज ऑफ मशीन, the amount for the purchase of machine was 3 lakh rupees. मशीन हमने परचेज की है तो 3 लाख रुपीस. हमने पेटेंट्स परचेज किए थे, the value was 50,000 purchase of patents. So this is the amount of money that has gone outflow. That is why we are writing it here. Is there anything else? Let us find out with the assets part. So machinery we have discussed, furniture done, investments 3 lakh. So increase in investments है, so ये भी purchase है. Patents हो चुका, बैंक ओवरड्राफ्ट फाइनेंसिंग का पार्ट है. ओके, सो लास्ट वन इज परचेज ऑफ इन्वेस्टमेंट्स. Purchase of investments 1 lakh rupees. So this totals to 4,15,000. So cash flow from investing activities is 4,15,000 in negative, माइनस के 4,15,000 है. ओके, नाउ द फोर्थ वन इज कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटी. फाइनेंसिंग एक्टिविटी का फॉर्मेट बना लें, देन हम इसको सॉल्व करते हैं. कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटी. सो कैश फ्लो स्टेटमेंट, सबसे पहले हमने शेयर कैपिटल का देखा था. शेयर कैपिटल इशू किया था 5 लाख रुपीस. शेयर कैपिटल 5 लाख रुपीस का था. आई जस्ट टॉक्ड अबाउट द बैंक ओवरड्राफ्ट फ्यू मिनट्स बैक. सो 2 लाख माइनस का, देन देयर वाज प्रपोज डिविडेंड एंड इंटरिम डिविडेंड. सो ये चारों ट्रांजैक्शंस इसमें आएंगी फाइनेंसिंग में. सबसे पहले इशू ऑफ शेयर कैपिटल. issue of share capital, then it is bank overdraft,
Issue of share capital was 5 lakh rupees. Bank overdraft minus 2 lakh. Then payment of proposed dividend. Payment of proposed dividend and payment of interim dividend. So proposed dividend was 1,50,000. Interim dividend was 1,20,000. जब हम इसको टोटल करेंगे this becomes, so balance is cash flow from financing activity 30,000. हमारा लास्ट पार्ट है कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स को डिटरमिन करना। अब देखो कितना आसान है। कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स कैसे डिटरमिन होते हैं? क्लोजिंग बैलेंस ऑफ कैश इन हैंड, मार्केटेबल सिक्योरिटीज, इन दोनों को ऐड करोगे इट विल बी क्लोजिंग बैलेंस ऑफ कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स, राइट? सो 50,000 एंड 1 लाख हमें लिख देना है एंड इट विल बी कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स. So I may say closing balance of cash in hand at bank. हमें क्वेश्चन में दिया हुआ 50,000 वी हैव जस्ट रेड एंड क्लोजिंग बैलेंस ऑफ मार्केटेबल सिक्योरिटीज इट इज 1 लाख. सो कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स कितना हो गया? 1,50,000. So cash and cash equivalents would be 1,50,000, right? So this solves all the 5 parts of this question, right? Goodbye. अगर आपको कोई भी डाउट्स हो स्टूडेंट्स, डू लेट मी नो. आई विल टेक केयर ऑल योर डाउट्स, क्लियर ऑल योर डाउट्स, राइट? टेक केयर. गुड बाय.